sunrise from Istanbul. जी ये है सनराइज फ्रॉम इस्तांबुल. Guys, how are you? Feeling all right? जी टर्की के खूबसूरत शहर इस्तांबुल. ये खूबसूरत बॉस्फोरस की लहरें, मज़ेदार जायके, खूबसूरत म्यूजिक, खूबसूरत चेहरे, खूबसूरत लोग. आप देखें और हमारी शेफ यहाँ पे मरियम भी हैं. इन सारी चीज़ों के साथ इसके अलावा हमारे पास आपके लिए खूबसूरत गेस्ट्स भी हैं. बहुत सारी इंटरटेनमेंट है, बहुत सारी इंफोटेनमेंट है. इस सब के साथ एक खूबसूरत सुबह में मैं आपको वेलकम कहती हूँ, खुश आमदीद कहती हूँ. जी हमेशा की तरह मेरे साथ मेरा लाइव ऑर्केस्ट्रा है. इनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ. आई एम श्योर कि अब तक तो आप इन सबको जान गए होंगे. हमारी लीड सिंगर जुरेन, वी हैव पाशा ऑन द गिटार, इस्माइल, अशरफ और हमारी बहुत ही टैलेंटेड शेफ मरियम. जी हमेशा की तरह हस्बे रिवायत हमारे पास आपके लिए बहुत सारी इंटरटेनमेंट है और इन्फोटेनमेंट भी है. लेकिन सबसे पहले मरियम इज वेटिंग फॉर अस. मरियम के पास चलते हैं और देखते हैं कि आज वो क्या बनाना सिखा रही है हमें. Yes, Mariam, how are you? Hello, how are you today? I'm super. Super. Super because You're a superwoman. I have a wonderful breakfast menu today. Oh, breakfast. Turkish breakfast. Yeah, ये तो मॉर्निंग शो है ना भाई. तो सनराइज फ्रॉम इस्तांबुल, तो why not, है ना? Why not? हमें यहाँ का ब्रेकफास्ट भी पता होना चाहिए कि क्या है. Lovely, I can see the eggs. अंडे तो नजर आ रहे हैं मुझे. We will make a menemen today. What? It's total Turkish. Menemen. Menemen. Yeah. Menemen. Okay. It's kind of a Spanish omelette, but a little bit different. And for you, we have some chilies inside of it. Oh, thank you. हम पाकिस्तानियों को यहाँ पे I've seen, मैंने यहाँ पे cuisine try की है. हम मिर्चे नहीं डालते हैं और हमें we like chilies. You like chilies. So maybe in the end मरियम जो हैं वो हमारी तरह का खाना बनाना शुरू हो जाएंगी. I think you will start cooking like us. I guess so. Yeah. I guess so. All right. And second is kind of a crepe. We call it Crepe. akıtma. You can Akıtma. eat it, with cheese, like salty things, or actually you can eat it with honey, jam, whatever you want. Cheese? Or you're making it with cheese? No, No. we are just making a dough, dough. with oil, eggs, some milk, sugar, salt, and flour. Flour. अच्छा, ये आटे की तरह की कोई चीज बनाएंगी. Dough. All right. And it's like a crepe. Exactly. Yeah. And you can stuff it whatever you want. You can stuff it with whatever you want. Like what? Jam. You can some अच्छा. chocolate. You can. Crepe यानी कि आप उसके अंदर स्टफिंग अपनी पसंद की भर सकते हैं. जैसे कोई जैम आपने डाल दिया, हाँ, and जैसे रोल बनता है. खैर, we'll see. Okay. And also we have ajuka. It's kind of a meze, and also we are eating it at the breakfast. What is it called? Ajuka. Ajuka. Okay, ajuka. Okay. It's spicy mix of tomato and It's what? pepper It's a paste. sauce? Like a sauce, but we are eating it like an appetizer. Appetizer. Okay. ये appetizer sauce है. It's spicy. Spicy. A little spicy. And we are eating it with the bread, and also we will use some dried old breads inside on it, and it's a good way to use the old dried breads. Mariam is telling us, ये बता रही हैं कि ये जो पुरानी हमारे पास bread पड़ी होती है, वो इसको बनाने में, इस सॉस को बनाने में यूज होगी. और ये एक अच्छा तरीका है कि कोई चीज घर में जाया ना जाए. तो this also can be used. Okay. Also, we are adding traditional walnuts, but I like the cashew salty taste and almond smooth taste. That's why I'm making a mix of nuts. Okay, right. तो ये इसमें nuts भी हैं जी. ये इसमें आप बादाम भी हैं, काजू भी हैं, walnuts, अखरोट वगैरह है. Okay. So what kind of breakfast do you have at home? मैं मरियम से पूछना चाहती हूँ कि ये अपने घर में किस किस्म का नाश्ता करती हैं? We will have a Turkish traditional breakfast today, and I also like it so much. This is Turkish traditional Yeah, with breakfast? cheese, cucumber, and tomato also. Cheese, cucumber, and tomato. Olives. Olives. हाँ. यहाँ पे olives बहुत खाए जाते हैं. So that is the kind of breakfast you have exactly. every day. Not every day, but this is the most I liked breakfast. This is my lovely one. Oh, you love it. Yeah, so much. No wonder you're a superwoman. ये यहाँ पे ज़्यादातर खाया जाता है या पसंद किया जाता है. All right, this is very interesting. And so, is this the kind of breakfast you guys also have? We What like did you it. have for breakfast today? आज क्या खाया है?
You really want to? I want to know, what did you have for breakfast? Because I didn't need something to. Neither did I. आज तो मैंने भी नाश्ता They are नहीं किया. waiting for this We're gonna breakfast. yeah. यही हम. And what about you, Pasha? No. Some, a little bit. Simit bread. But the bread is so hard here. How do you eat it? Yeah. पाशा से पूछते हैं ये इतना सोया हुआ क्यों लग रहा है? रात को कहाँ था? पाशा? Why? I mean, tell me. Why are you looking so sleepy? Where were you last night? What did you do? Yeah. Come on. Be honest. सच बताओ भाई. At my home. Are you sure? Yeah. And you didn't sleep? I'm asleep. You slept? Yes. It doesn't look like it. हमारे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि भाई डायरेक्टर वो नीचे से कह रहे हैं कि पाशा wake up, Pasha wake up, Okay. be fresh, okay? Yeah, come on. And Ashraf, what about you? About breakfast or Yeah, breakfast. Okay. Actually, the eggs and tomatoes are my favorite. Yeah. But the most important thing in the breakfast is olive oil. Olive oil. Olive oil. Yes. What do you do with Simit it? and olive oil. The olive bread. Spice. You have to mix spices with olive You oil. know how to do it? Yes. Yeah? A little. Yes. Okay, maybe Mariam, he can also teach us how to make that. Sure. Like Sure. Ashraf The master. is saying that olive oil and chilies. spices. Spices. Okay, Yeah. you like chilies. Yes. Okay. तो ये स्मिथ जो ब्रेड है और ऑलिव ऑयल विद चिलीज इसका कोई सॉस या उसको बनाते हैं वो भी हमें मेरे ख्याल में बनाना सिखाएंगे. You'll have to teach us how to make that. All right? Okay. Okay. And She's what the about master Ismail? chef, you know. He's still sleeping. No. No. I make up. You can give him the mic. You have it? You hear me? You hear me now? Oh, you have. I have Okay, a okay, microphone, okay. please. My taste is similar like Ashraf, but today nothing, not yet. Not Just yet. pocha, No like- Smith. Just simit, yes. Simit. And yeah. coffee. And coffee. Yeah. अच्छा मेरे ख्याल में इसीलिए ये सारे सोए हुए हैं कि उन्होंने प्रॉपर्ली नाश्ता नहीं किया है. हाँ जी इनको मेरे ख्याल में नाश्ता कर. Mariam, they're all sleeping. They need to Yeah. wake up. Yeah, I started. But you, Ismail, somebody was telling me that you drink a lot of coffee and you keep coffee with you. Yes. ये कॉफी अपने साथ बहुत रखते हैं. Turkish coffee. No, it's. Then which coffee? Like French press, filter coffee. Oh, filter coffee. Yes. तो बस ठीक है फिर. Today, Ismail is going to make coffee for everyone. I don't like tea. Give it to Pasha. He needs to wake up. Okay. Let's go. All right. Let's go down. Okay, guys. मैं आपको बता दूं कि हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत प्यारी सी गेस्ट आज हैं जिन्होंने बहुत कम अरसे में अपनी जानदार अदाकारी के साथ सबके दिलों में घर कर लिया. मैं उनका नाम लूंगी आपको पता चल जाएगा एंड आई एम श्योर यू वुड लव टू मीट हर. उनका नाम है माया अली. आप इंतज़ार कीजिए माया अली का. तब तक हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक बट स्टे विद अस. Welcome back to Sunrise from Istanbul. उठ गई सुबह सुबह माया हमारे साथ है. उठ गई. मुझे बहुत मज़ा आ रहा है. बहुत फ्रेश हूँ और आई सैल्यूट यू मारिया जिसने आप यहाँ पे. मैं आपको बताऊँ मुझे नीचे से यहाँ पर 2 लोग पकड़ के लाए और मारिया यहाँ पे कभी वहाँ कभी यहाँ वॉक कर रही है और मैं देख रही हूँ क्या करूँ. हील्स उतार दूँ, फ्लैट्स पहन लूँ, क्या करूँ. So welcome to Turkey. Thank you. Is it your first time? पहली दफा. कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा. मतलब मुझे मौका नहीं दे रहे यहाँ के प्रोड्यूसर कि मैं जाऊँ यहाँ से कहीं बाहर निकल के. मैं इंशाल्लाह लेकिन अभी जाऊँगी. बहुत अच्छी. और अभी बोर्ड पर जो आप शो कर रहे हैं मारिया, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है. बहुत फ्रेश फीलिंग. That's great. And Maya,
ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल एक्ट्रेस। हम बहुत खुश हैं कि यू हैव आपने टाइम निकाला और हमारे पास आई। सो मुझे एक बात बताओ दैट क्या कहते हैं, आंखें खुल गई हैं अब तुम्हारी? अच्छा हाँ, ये आपका क्या सीन था कि मेरी आंखें खुल नहीं रही थी, मतलब माशाल्लाह क्या क्या कर रहे हैं। तो मुझे कहती सूरज को देख के आंखें बंद करके रखो, तो नहीं मुझसे हो रहा, लेकिन अब आई थिंक ये देखिए थोड़ा थोड़ा होने लगा है ना। मैं माया से कह रही थी, यू बीन इन द फील्ड, इतने अरसे से आप अब काम कर रहे हो, तो आउटडोर शूटिंग में तो हम क्या क्या नहीं करते, और फिर जब फिल्म करोगी तो वो कैसे करोगी? वो फिर रिहर्सल्स में तो आंखें तो खुली रखनी पड़ेगी ना, जरूरी है। डेफिनेटली नहीं बहुत, अभी रिहर्सल्स हो रही है मेरी यहाँ पर। एग्जैक्टली। अच्छा मुझे बताओ कि ये You started journalism? जी एग्जैक्टली, मैंने मैस कम्युनिकेशन में किया था मास्टर्स, तो उसके साथ फिर मैं इस फील्ड में आई थी। कैसे आ गई? क्यों आई? बस क्यों कैसे तो चलो आ गई, क्यों आई? क्योंकि मुझे पुकार रही थी ये इंडस्ट्री चीख के। नहीं डेफिनेटली आई थिंक वी नीड, हमें ज़रूरत है नए फ्रेश लोगों की, पढ़े लिखे लोगों की, जो आके काम भी करें। और क्योंकि कोई भी आर्टिस्ट हो, किसी भी फील्ड से हो, बल्कि कोई भी फील्ड हो, चाहे आर्टिस्ट हो या ना हो, आप एम्बेसडर्स होते हैं अपने कल्चर के, अपने मुल्क के। आप जहाँ जाते हैं तो एक आपका इमेज होता है जो लोग देखते हैं और एसोसिएट करते हैं उसको आपकी कंट्री से। जैसे कि मैं यहाँ पे बैठी हूँ, आप हैं, आप बुला रहे हैं, इन लोगों के सामने बहुत अच्छा लग रहा है। So don't you think she's pretty? She's pretty? All right. Okay. All right. So मैंने सुना है कि वो बचपन में बहुत शरारती भी थी। बहुत, अभी तक बहुत शरारती, कुछ ना कुछ मुझे। क्या करते हो तुम लोग सेट पे आजकल? आजकल तो मतलब यही है कि सेट पे आती हूँ, कोई मैं जब आती हूँ तो मुझे डायरेक्टर्स या मेरी जो को टीम होती है वो सिर्फ ये कहते हैं कि अब माया आ गई, अब तो जान आ गई है पूरे सेट में, आज ये खामोश है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, बोल नहीं रही। लेकिन मुझे ये होता है कि जब तक मैं हूँ मुझे एनर्जी चाहिए। अभी मैं आई थिंक इनके लिए कॉफ़ी लेकर आऊँगी, तो कॉफी पीते हैं, वी नीड टू हैव सम कॉफी, है ना? या तो क्या बचपन में शरारतें क्या होती थी? बहुत शरारतें हैं, घर में तंग करना, अम्मा को तंग करना, कजन्स को डराना, स्पेशली डोर बेल दे के भाग जाना जब तक करती हूँ। I've done that. मैंने कितना मजा आता है ना, सेम है। दोपहर में क्योंकि you're from लाहौर, मैं भी I'm from लाहौर, और वो हमारे वहाँ पे है ना कि खाने के बाद गर्मियों में आप सो जाते हैं, और उस वक्त हम निकलते थे और डोर बेल्स के ऊपर टेप लगा, जब लाइट अभी तक मैं करती हूँ, लाइट जाती थी तो आप लगा देते थे, जब लाइट आती थी तो वो तो बजना शुरू कर देते सबको। एग्जैक्टली। कितनी गालियाँ पड़ती होंगी, पर इट्स सो मच फन। बहुत ज़्यादा। तो मतलब ये नहीं कि लाहौर की लड़कियाँ बेल बजाती रहती हैं और भी बहुत कुछ करती है। और क्या क्या करती है? और इसके अलावा मुझे डांस का बहुत शौक है, जो अब तक मैं अपने कमरे में जब मैं बोर हो रही होती हूँ रात को, स्पेशली 1-2 बजे शूट के बाद आके, तो मैं लॉक करके तो म्यूजिक लाउडली और गाना डांस ये वो। अभी तो मैंने नाचने का शौक है कि नचाने का भी है? मैंने सुना है तुम नचाती भी हो। बहुत ज्यादा बहुत, मतलब है कुछ सुना। भाई शिकायतें भी आई कि सेट पे लेट आती हो और तंग करती हो, सीरियसली लेट से पहले ये चली जाती है। आजकल तो मेरे ख्याल में ये ट्रेंड है कि यही फॉलो कर रहे हैं नहीं, एक्चुअली मुझे लेट आने का मुझे बिल्कुल नहीं है, लेट नहीं मैं आती। मुझे ये होता है कि अगर आपने कहा 9 to 9, 10 to 10, 11 to 11, तो 12 आवर्स काफ़ी होते हैं एक्टर्स के लिए। मतलब आप कहाँ से इतने इमोशंस लेकर आओगे, कितना आप एक्ट करोगे, तो थक जाता है बंदा। एग्जैक्टली। So, और किस चीज़ का शौक है? What are your hobbies? आप ड्राइव बहुत करती हूँ, मुझे जब टेंशन में होती हूँ निकल जाती हूँ। लाहौर में तो जगह ही नहीं है कोई ड्राइव करने की। मैं इधर निकल जाती हूँ, नहर की जो कैनाल साइड है उस पर करती हूँ। बहुत आगे तो नहीं निकल जाती? नहीं बहुत आगे वहाँ पे जाने का बहुत, टीवी देखती रहती हूँ, मूवीज देखती रहती हूँ, टेंशन्स को मतलब कि उससे दूर रहने की कोशिश करती हूँ। टेंशन देने की कोशिश करती हूँ। वो हो जाए तो हो जाए, दे दी तो दे दी, उसके बाद ये होता है कि अच्छा आप अगले को तो दे दिए, अब वापस ना आ जाए। तो हाउ डू यू डील, क्योंकि जाहिर है अब माशाल्लाह सो मेनी चैनल्स, इतना काम हो रहा है, इतने ड्रामे हो रहे हैं, इतने लोग नए आ रहे हैं, इस वक्त सेट्स पर किस किस्म का माहौल है, इन द सेंस के क्या कंपटीशन है? हाउ डू यू डील विद इट? लेट्स बी ऑनेस्ट हियर। एग्जैक्टली, नहीं कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा हो गया। एक मुझे लगता है जो मुझे कहना भी चाहिए कि जिस तरह हमारे, जिनको हम आपस कहते हैं, जो हमारे सीनियर एक्टर्स हैं, मुझे नहीं लगता कि उनका हमारा कंपटीशन, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरा उनके साथ कंपटीशन हो सकता है। माशाल्लाह उन्होंने इतना काम किया, लेकिन इनसिक्योरिटी क्यों आती है मुझे नहीं पता।
आपका अपना कैरेक्टर है या दूसरे एक्टर्स उनका अपना कैरेक्टर है, आप अपनी तरह से निभाओ, मुझे अपना करने दो। हाँ, और स्क्रिप्ट आपने पढ़ा हुआ है, आपको आपने पता है पढ़ के साइन किया है सब कुछ, फिर आप आके बोलो ये लड़की इतना लेट क्यों कर रही है। अच्छा भाई मेरा कैरेक्टर है, मुझे सब कुछ करना है, मुझे बिठा दो तो मैं काम कर लूंगी। तो ये सब चीजें आती खत्म, छोटी-छोटी चीजें होती हैं। और व्हाट अबाउट जो आपके साथ लोग हैं इस वक्त काम कर रहे हैं ऑफ योर एज ग्रुप, उसके अंदर तो उससे ज्यादा होती होगी होती है, समा होती, लेकिन मेरा उनके साथ उस तरह से डील करती हूँ। मारी में दूर हो जाती हूँ कि मुझे लगता है कि इधर से कुछ नेगेटिव वाइब्स मुझे मिल रही हैं तो मैं खामोश हो जाती हूँ। लेकिन वही बात है, इफ आई एम गुड देन आई एम वेरी गुड, इफ आई एम बैड देन आई एम वेरी बैड। वही मैं पूछ रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज वेरी नेचुरल। तो ये कोई नहीं, ये ऐसा नहीं है कि हमारे मुल्क में होता है या हमारी इंडस्ट्री में हो रहा है, इट इज ऑल ओवर। कंपटीशन भी होता है, लेकिन कई दफा ये होता है कि समबडी, कुछ लोग ओवरबोर्ड चले जाते हैं और आपको ज्यादा कॉर्नर करने की कोशिश करते हैं। तो किस तरह उसको डील करती हो? जेलसी, जो जेलसी है तुम में? नहीं मैं नहीं मान सकती, ये तो नहीं हो सकता। जेलसी होती है यार, हर इंसान में होती है। मुझे जेलसी इस तरह से नहीं होती क्योंकि मुझे पता है मेरा काम क्या है। मुझे अगर मैं जेलसी में काम के ऊपर इफेक्ट करूंगी तो मेरा काम खराब होगा। ये लड़की अब बातें बहुत अच्छी करती है, लेकिन इसलिए हम एक्टर्स हैं। मतलब प्लीज, आई एम सो नेचुरल, है ना? एक्टिंग हो रही है, पता चल रहा है मुझे, ठीक है। मेरा ख्याल में कॉमन फैक्टर है, मेरा ख्याल में हर इंसान के अंदर सारे इमोशंस होते हैं। हम जेलस भी होते हैं, हम इनसिक्योर भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स भी। सो आई थिंक इस चीज को एक्सेप्ट करना, उसको एक्सेप्ट करना कि हाँ होता है, कहीं लगता है कि यार मैं शायद ज्यादा डिजर्व करती थी बट इसको ये चांस मिल गया। ऑलराइट, इस तरह की चीजें आती हैं ज़हन में। बट हाउ डू यू देन? मुझे ये होता है कुछ चीज़ मुझसे मिस होगी। बहुत से कमर्शियल्स होते हैं, आपको कॉल आती है, आप डेट्स की वजह से नहीं दे सकते, फिर आप देखते हो ओह कितना अच्छा कमर्शियल है, थैंक यू बैकग्राउंड म्यूजिक का, बहुत शुक्रिया, चलते जाए। आई थिंक ये शिप आपके साथ एग्री। और उसके अलावा ये होता है फिर मुझे होता है कि चलो अल्लाह ने अगर ये नहीं दिया तो इससे बड़ी चीज़ होगी। तो ये कह के, और इसको मुझे यकीन भी है अगर आपकी किस्मत में ये नहीं है तो आपके लिए जो है वो आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। ओके, सो इसके अलावा व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स आर यू डूइंग दीस डेज? अभी एक दो तो मेरे ऑन एयर हैं डिफरेंट चैनल्स पे, तो इंशाल्लाह अभी 2 और कर रही हूँ, मूवीज़ की तरफ जा रही हूँ। आगे प्लान में मेरा ये है कि मुझे मूवीज़ करनी है, तो एक साइन, हाँ जी मैंने की है, पाकिस्तानी मूवी साइन। अच्छा, किसकी है? साकिब मलिक के। अच्छा, दैट्स वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। माया हमारे साथ है, इनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमें वो भी बताएं जो ये नहीं बताना चाहती। अब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और फिर वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। गाने का शौक है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मुझे भी नहीं है। लाइक गाने का शौक तो बहुत है, गा नहीं सकते। एग्जैक्टली। वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। माया इज स्टिल विद अस। माया, जरा अपनी फिल्म के बारे में थोड़ा सा और बताओ। साकिब तो बहुत अरसे से सुन रहे थे। जी बिल्कुल, ये वही है फिल्म जो काफ़ी टाइम से आते आते यहाँ पर आई है। फिल्म इंशाल्लाह नवंबर में इसकी शूट शुरू होगी और इसमें मेरे साथ उस्मान खालिद भट्ट हैं। अच्छा। और अच्छी मूवी है, लव स्टोरी है, होनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ बहुत ही अच्छी मूवीज आनी चाहिए। और बन रही है अब तो? बन रही है। Who's the writer? राइटर आई थिंक अली उनका नाम है। अली सिकंदर आते हैं। आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। अच्छा। तो क्यों तुमने साइन की? फिल्म ऑफर हो गई साकिब की? नहीं, नॉट एट ऑल। मुझे बहुत सी मूवीज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑफर्स हो रही थी, लेकिन आई थिंक कि ये फिल्म है, वरना ऐसे मुझे मारिया ऑनेस्टली एक फिल्म के लिए बुलाया, मेरी मीटिंग थी, मैं बैठी उनके साथ, तो मैंने कहा स्क्रिप्ट क्या है, क्या स्टोरी है? बस ये लव स्टोरी है, लड़की और लड़का आपस में मिलते हैं और ये। मैंने कहा ये क्या है? आपने ये नहीं पूछा गाने कितने हैं मुझ पर? नहीं, आप बताते जब लिखते जाते हैं और फिल्म आपके लिए तैयार है। मैंने कहा जी ये फिल्म बन रही है हमारी, भाई हमें अच्छी फिल्मों की ज़रूरत है।
है, हमारी इंडस्ट्री को है। तो हमारे एक्टर्स को फिर कॉन्शियसली पिक भी करना पड़ेगा। कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। तो साकिब का ये था कि वो काफी टाइम से काम कर रहे हैं और स्क्रिप्ट उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग है, टीम बहुत अच्छी है, तो इसलिए मैंने उसको साइन किया। अच्छा, और ड्रामों का एक्सपीरियंस जो तुम्हारा कुछ अरसे से, आई मीन यू 3-4 साल हो गए इसमें काम करते हुए, तो जैसे आजकल जब हम सेट्स पर होते हैं तो क्वांटिटी पे बहुत जोर होता है ना। अब मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, वो एक फैक्ट्री होती है उसमें से निकलना होता है। डायरेक्टर्स तुम्हें लगता है कि उतना क्वालिटी पे ध्यान देते हैं या क्वांटिटी पे? क्या व्हाट्स द मारिया माशाल्लाह, मैंने हाशिम हुसैन के साथ काम शुरू किया तो उनका क्वालिटी पे था, क्वांटिटी नहीं था कि करना है एक दिन में 6 सीन भी कर लिए, 3 भी कर लिए, 10 भी कर लिए, लेकिन वो एक मार्जिन होता है। आप एक छोटा सीन करो, एक बड़ा सीन कर रहे हो। फिर मैं अब हसीब के साथ काम कर रही हूँ तो उनको ये नहीं होता कि मुझे 10 सीन करने हैं, मुझे 15 करने हैं। 6 करो, अच्छे करो, डिटेल में करो। तो मुझे अभी तक ऐसे कोई डायरेक्टर साहब नहीं मिले जो कि कह रहे होंगे आज 20 सीन तो करने ही करने हैं, चलो। अच्छा। हाँ, तो अल्लाह का शुक्र है मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला और मैं एंजॉय करती हूँ। और जाकिर की फिल्म में कितने गाने हैं तुम पे? साकिब से बात What kind? अच्छा, किस किस्म की फिल्म है? Is it a comedy? कॉमेडी लव स्टोरी। अच्छा, रोम कॉम है जी, काइंड ऑफ लाइक that is very good, that is very अच्छी good. फिल्म है। मतलब मुझे लगता है कि जब हम सिनेमा जाते हैं, टाइम निकाल के पैसे लगाते हैं और आपको बड़ी स्क्रीन पे भी आपको एक ड्रामा ही उठा के दे दिया जाए तो वो गलत है। बाल मुंह में आ रहे हैं लेकिन अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन हवा चल रही है नेचुरल। नहीं, अब तो तुम्हें गानों की और इस तरह की खूबसूरत जगहों पे गाने पिक्चराइज करने की हाँ, मैं वो तैयारी प्रैक्टिस कर लेनी मैं चाहिए। चेक करी मेरे बाल ऐसे करूँ तो कैसे लगे। साकिब देखिए, हम आपकी फिल्म के लिए आपकी हीरोइन को प्रैक्टिस करा रहे हैं। So, अच्छा, and you were telling me कि तुम्हें डांस, what kind of dance do you like? मुझे मैंने सीखा तो है नहीं, कुछ इस तरह का क्लास भी नहीं ली, तो मुझे जो म्यूजिक मिल जाए अभी तो मैं दिल करता नहीं। अभी करेंगे ना, अभी हाँ बस मॉडलिंग खत्म होते फिर हम करते हैं। Yeah, this she's a movie star as well. She's signed a film and there are dance numbers in it. So but a decent dance. हाँ, nice. So that we can she can dance to that. But later on. हम देखेंगे, हम ऑडिशन लेंगे कि ये फिल्मों के काबिल। देखिए, मैंने बहुत मेहनत की है यहाँ इस्तांबुल तक आने की। हाँ ना, तो हम देखना चाहते हैं ना कि how talented is Amaya, एक्टिंग में कितनी टैलेंटेड है, डांस में कितनी है, क्योंकि बास्केटबॉल खेलती थी, क्या खेलती थी? मैं स्पोर्ट्स प्लेयर थी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, मतलब स्पोर्ट्स में काफ़ी थी, एथलीट भी थी, तो उसकी वजह से आई थिंक एक स्टेप तो ये होता है ना, ये वाला, ये ऐसे आया है। हाँ, और दूसरा एग्जैक्टली, देखा। सो देखो स्पोर्ट्स का कितना फायदा है, फ्लेक्सिबिलिटी आप में बहुत ज़्यादा आती है। So, स्पोर्ट्स टीम में थी, कैप्टन थी, exactly. So क्या है, टेल मी समथिंग अबाउट। वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था हमारे। आप स्पोर्ट्स में थे, आप यूनिवर्सिटी जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, सुबह जाते हो, आप 6 बजे आपको होना होता है वहाँ पे, एक्सरसाइज आपकी होती है, फिर आप क्लासेस भी ले रहे हो। तो मैं अभी भी वो टाइम बहुत मिस करती हूँ। कहीं हम लोग इतना काम कर रहे होते लेकिन हमारे लिए टाइम नहीं होता। अभी लोगों को लग रहा है मारिया इस्तांबुल में शो कर रही हैं, मैं यहाँ बैठी, लेकिन मैं आपको बताऊँ बहुत हेक्टिक है। मेरे लिए तो चले ठीक है, मैंने एक शो किया और चली गई। मारिया के लिए अभी इसके बाद दोबारा एक शो करेंगी, जाएंगी, आएंगी, तो बहुत हेक्टिक हो जाता है। प्लीज मतलब अब हर हाल में पसंद करना है, हर हाल में। नहीं, यू आर देयर, तो वो पसंद करेंगे बिकॉज आपको देखना चाहते हैं। बट टेल मी, इतने कम अरसे में यू बिकेम माशाल्लाह सो पॉपुलर, यू गुड एट योर वर्क, अच्छा काम भी करती हो, तो टैंट्रम्स हैं? नहीं, अब हो गए हैं थोड़े से? नहीं, थोड़े बहुत टेंट्रम्स इन अ वे के मुझे गुस्सा आता है, आपका 9 बजे का कॉल टाइम है और आप कह रहे हो शार्प 9 बजे आपको पहुंचना, खुद आपकी गाड़ी 10 बजे लेने आ रही है, फिर आप कह रहे हो कि अच्छा आपका सीन जरा तीसरा है ना, क्यों है भाई, क्या वजह? मैं नींद ना पूरी कर लेती, इससे अच्छा था। अच्छा, हाँ, नींद पूरी करने का मसला है ना, क्योंकि है आप रात को लेट फ्री कर रहे हो, तो यहाँ पे आके मुझे होता है आपको अच्छा, मतलब आप डाइट पे भी आपको मोटा भी नहीं होना, फिर आप लंच ऑर्डर करते हो वो नहीं आता, तो यहाँ पर आके गुस्सा आता है। अदरवाइज आई एम ओके विद एवरीवन। अदरवाइज ये 8-10 चीजें हैं मेरे मसले, अदरवाइज आई एम ओके, कोई मसला नहीं है। अच्छा, वो ऐसी क्या चीज है व्हेन इट कम्स टू योर वर्क दैट अभी जो तुम काम कर रही हो उसके अंदर कि बस ये नो, आई विल, इफ दिस हैपेंस आई विल जस्ट वॉक आउट? क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त कर रहे होते हैं, काम ऐसा होता है और हमें पता है कि हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज भी हैं काम में, लेकिन व्हाट इज इट
जिसमें तुम्हारी बस हो जाती है और तुम मुझे कहोगे अभी कि तक बस जो हो लगता है गई। ना कि मुझे टाइम से मेरी बस हो जाती है। आप सुबह 7 बजे बुलाओ, मैं 7 बजे आ जाऊंगी, लेकिन आपको शाम को 7 बजे मुझे छोड़ना पड़ेगा। आप 8 करोगे ना तो मेरी बस हो जाएगी बस। अच्छा, गुस्से की तेज हो? यस, मुझे गुस्सा बहुत आता है, लेकिन उतनी जल्दी उतर भी लियो हो ना? यार ये तो फायदा उठाते हैं लोग ना। है ना, लेकिन हमें गुस्सा आता है और फिर एकदम उतर भी निकल भी जाता जाता है। है। बिल्कुल, मैं भी सुबह मारिया से ही पूछ रही थी कि अच्छा आपको स्टार की आपकी बहुत सी चीजें मुझसे मिलती हैं। कहती है हम लियो, मैं कहा ओह अच्छा। जैसे मुझे एक है ना, आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। मैं मॉर्निंग शो कर रही हूँ और मैंने कितना अरसा सोचा कि मैं कभी नहीं करूँगी ये काम, तो मैं कर ही नहीं सकती बिकॉज आई एम जस्ट नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। सीधी सी बात है। आर यू मॉर्निंग पर्सन? यस, somehow I am। अच्छा। मुझे कोई इश्यूज नहीं होते सुबह उठने में। वही ना, मुझे नींद अगर पूरी मेरी हो जाए तो फिर मुझे कोई इश्यूज नहीं। और धूप मतलब माशाल्लाह ऐसे निकली है, आज के बाद निकलेगी नहीं जैसे। नहीं, अभी तो द वेदर इज रियली गुड, बहुत अच्छा वेदर है, वरना तो फिर पाकिस्तान में तो बहुत गर्मी है, उसके लिहाज से तो फिर तुम शुक्र करो ना कि तुम्हें यहाँ इतना अच्छा खूबसूरत वेदर मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो मौसम है वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। अभी धूप निकली हुई है, अभी बारिश होनी शुरू हो जाएगी, सर्दी हो जाएगी, फिर इतनी गर्मी हो जाएगी। सो इट्स काइंड ऑफ अनप्रेडिक्टेबल, लेकिन फिर इंसान वो एंजॉय भी करता है। तो क्या क्या ट्राई किया? टर्किश खाना खाया, पिया चाय? ये बहुत अच्छा है। मैं भी 2 नीचे पी कर आई हूँ, तो तीसरा भी पड़ा है, तो मैं सोचूं पी लूँ अब। ये बहुत अच्छा है, मैं लेकर जाऊँगी इसको। और बाकी इतना मुझे नहीं मौका मिला, आज मैं ट्राई करूँगी जाके, लेकिन मुझे लगता है कि स्पाइसेस कम होते हैं थोड़े। स्पाइसेस हमें जरा किस तरह का खाना खाने? मैं हर तरह का खाना खा लेती हूँ। भूख लगी हो बस? भूख लगी हो, लेकिन थोड़ा खाती हूँ, ज़्यादा नहीं खाती, थोड़ा देर भी खा लेती हूँ। हाँ, इसका तरीका भी पूछ लेना। इस्माइल, you guys, you know how to make this? This cha something? Cha? Yeah. Keva? All right. So you'll have to teach her because she is going to take it and make it in Pakistan. Everything. You can dance? Who can dance? Who will dance with her? Please. Somebody has Who to. can dance? Come on. No, you need to learn. With your hands? No. Dance with the feet. भाई हम पूछ रहे हैं कि भाई माया से हमने एक 2 स्टेप्स करवाने हैं विद द म्यूजिक। जुरैन गाना गाएंगी तो कौन उनका साथ देगा? अभी भी आपको डांस करती हुई नजर आऊंगी बोर्ड पे ऐसे। नहीं, वो तो हम सब कर रहे हैं। आई थिंक क्योंकि लहरें इतनी मजबूत कर देने वाली हैं तो हम स्वे कर रहे हैं ना। माया, लेट मी टेल यू, पूरी दुनिया में इतनी डिशेस, जितनी टर्किश डिशेस हैं, आई थिंक how many dishes in Turkey? 380? Like that? Yeah, more. Yeah, 380. इतनी किसी की नहीं है। मेरे ख्याल में सेकंड नंबर पे French dishes है। So Mariam, is the breakfast ready? We are hungry. Not yet, but coming soon, because our first stage ajuka is ready and we will eat it with the bread. And now I'm preparing menemen. At last time, I will prepare the crepe for you to be hot. You have time. Okay? तो I can wait then. जब तक मरियम हमारे लिए नाश्ता बनाती हैं, और ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा घर पे। आई एम श्योर कि हम इसकी सारी इंग्रेडिएंट्स और आपको इसकी तरकीब बताएंगे, तो यू मस्ट ट्राई इट और आप फिर हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो जब तक हम ये नाश्ता बनने का इंतज़ार करते हैं, तब तक हम आपको और माया को एक खूबसूरत गाना सुनाते हैं। जुरैन, यू हैव अ सॉन्ग फॉर अस? O məni tərk eylədi oranda
वेलकम बैक। माया हमारे साथ है। अच्छा माया, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि व्हाट्स इंस्पिरेशन होती है ना इंसान की ज़िंदगी में, डिफरेंट फेजेस में डिफरेंट चीज़ें आपको इंस्पायर करती हैं, तो व्हाट इंस्पायर्स यू इन लाइफ? मारिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे उस तरह से कोई इंस्पायर नहीं करता कि मुझे लगे कि अब मुझे इसी की तरह चलना है, इसी की तरह करना है। एक्सपायर हो जाता है इसको फॉलो करते करते। मैं एक्सपायर हो जाऊंगी, इंस्पायर नहीं होती और लेकिन ये कि एक्टिंग फील्ड में मुझे बहुत से एक्टर्स बहुत चलते हैं, डेफिनेटली यू मारिया, इसलिए कि मैंने तुम्हें बुलाया, इसलिए तुम मेरी तारीफ कर रही हो। जो है ना एक्टर्स मुझे पता चल जाता है। नहीं, मुझे पता चल जाता है जब तुम एक्टिंग कर रही हो। नहीं, आप मेरे बाकी इंटरव्यूज भी देख लो तो उसमें भी मैंने मेंशन किया होता है। सनम बलोच मुझे बहुत पसंद है, उनके साथ तो मैंने काम कर लिया, आपके साथ में बैठ गई यहाँ पर। बाकी फैसल कुरैशी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लाइफ में कौन इंस्पायर करता है? जैसे हम बड़े स्केल पे देखते हैं तो आपको लोगों की, बड़े लोगों की लाइफ इंस्पायर करती है। जैसे नेल्सन मंडेला की आपको पूरी लाइफ इंस्पिरेशनल है, एंड यू फील दैट इस तरह की एनर्जी या इस तरह के लोग होते हैं जो एक चेंज लाते हैं दुनिया में। अब्दुल सत्तार ईदी साहब, डेफिनेटली। मेरे भी मुझे मैं जहाँ कराची में स्टे करती हूँ, उनका वहीं पे अब्दुल सत्तार ईदी साहब का है, तो मैं रोज़ाना वहाँ से गुजरती हूँ, मैं कहती हूँ कितना ये काम कर चुके हैं और कितना कर रहे हैं। आई विश कि मुझे इतना से भी कोई मिल जाए तो मैं डेफिनेटली करूँगी, है ना। और खामोशी से पता भी नहीं होता समटाइम्स मेरे पास जितने जो हो सकता है। मारिया, मैं ये नहीं कहूँगी मैं लाखों देती हूँ, मैं ये करूँगी, जितना हो सकता है मैं जाके ज़रूर उनके वहाँ पर देख कर आती हूँ कि शायद किसी का तो मैं कर रही होंगी अच्छा। एग्जैक्टली, क्योंकि आप जब लाइफ से ले रहे होते हैं तो आपको वो उसको वापस भी देना होता है, करना होता है। बिकॉज दुनिया का ये सिस्टम है कि ये चलती ही इसी तरीके से। बिल्कुल। बिकॉज आपको जो आप लेते हैं आपको कहीं ना कहीं उसको पे बैक जैसे होता है ना, करना होता है। तो पाकिस्तान में पैदा यहीं पर मैं हुई, तो you've lived here और तुमने देखा होगा हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो, हमारा सिक्योरिटी, हमारे मुल्क के हालात। अगर तुम्हें कहा जाए कि एक कोई चीज़ जो तुम चेंज चाहती हो, वन थिंग दैट जो सबसे प्रायोरिटी पे चेंज आना चाहिए, वो क्या है? आप पॉलिटिकल वे में बात करें पाकिस्तान में what is close to your heart? मैं जहाँ मैं काम कर रही हूँ, जिस इंडस्ट्री में, उसके बारे में कहूँगी कि हम लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं सुबह से रात तक, लेकिन जब हमारे प्रोड्यूसर्स की बात आती है, चेक्स की बात आती है, तो हमें ऐसे बस कल मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा, और फिर आपको फ़ोन करके कहना पड़ता है अब हमारा चेक दे दें। भाई, हमने काम किया, अपनी मेहनत के पैसे आपसे मांग रहे हैं, पहले काम करो, उसके बाद फिर बेग करो, उसके बाद फिर उनके फ़ोन करके कॉलिंग करके आप अपने वो उसका करो बिल ज़्यादा, फिर उसके बाद जाके आपको। नहीं, आप हमारे चैनल के साथ काम करें, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम गारंटी कर रहे हैं। बस मिल गया मुझे कि मैं आई इसलिए थी यहाँ पर, समझ गए ना आप लोग। अच्छा, मुझे बताओ कि व्हाट इज योर पेट पीव? होता है ना कि जैसे मुझे बहुत सारी है मेरी, तो लगे कोई चीज़ टेढ़ी दीवार पे लगी हो, कोई पेंटिंग हो या कोई तौलिया सही ना पड़ा हो या कोई चीज़ तो मैं किसी के घर में भी होंगी ना तो जाके उसको ठीक कर दूंगी। आई हैव दिस थिंग, मुझे जिस तरह ये कप्स खाली पड़े हैं टेबल पे, मुझे होता है कि ये उठा दो, बस सामान बिखरा हुआ ना हो, उठाए ना यहाँ से। मेकअप रूम में क्यों सामान पड़ा है? खाना नहीं खाना मेकअप रूम में, जाके डाइनिंग पे बैठ के खाएं। मुझे इन चीज़ों से ज़रा होता छोटा। अच्छा, आर यू डोमेस्टिक इज वेल? क्योंकि हम सारा वक्त काम कर रहे होते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता कि आप लोग अपने घरों के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते। और आई हैव सीन बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जिनको मैं जानती हूँ, वो कुकिंग में माहिर हैं। डू यू लाइक कुकिंग एंड ऑल? हाँ, बिरयानी तो तुम बहुत खाती हो। डेफिनेटली मैं बिरयानी बना भी लेती हूँ और मुझे पसंद भी कुकिंग करना। मौसम जब अच्छा होता है तब कर लेती हूँ, कभी टाइम मिल जाए, ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत करती हूँ, टाइम मिल जाए तो अच्छा बना लेती हो कि फिर बना के फिर मुझे लगता है कि जो बनाती हूँ अच्छा बनाती हूँ। जो भी बनाती हो। ये सुन लिया आपने? ये जब तुम झूठ बोलती हो ना, ये बीफ आती है। ये जो है रखी हुई है, बोर्ड रखी है इन्होंने। नहीं, मैं बहुत कम चीज़ें बनाती हूँ, लाइक बिरयानी हो गई, मुझे कबाब बना लेती हूँ, उल्लू बना लेती हूँ, ये बहुत अच्छा बना लेती हूँ। तो ये तो मेरा बेस्ट है ना काम। तो व्हाट इज़ योर हाउ, जब फैमिली के साथ कैसा है तुम्हारा, और जब व्हेन यू आर ऑफ तो क्या कैसे दिन गुजरता है? हमारे टाइम नहीं होता, कराची में मोस्टली होती है, लाहौर में फ्रेंड्स और फैमिली होती है। जब जाती हूँ तो बहुत उनके साथ कोशिश होती है मेरी कि मैं टाइम स्पेंड करूँ अम्मा के साथ, छोटे भाई के साथ। किससे क्लोज हो? अम्मा के साथ ज़्यादा। अच्छा, क्या लेसन लर्न किया कि ये करना है और ये नहीं करना
How was your अभी journey? अगर आप ये 6 महीने पहले मुझसे पूछती तो मैं कहती कि हाँ मैं लोगों पे बहुत ट्रस्ट कर लेती बहुत जल्दी, लेकिन अब मुझ में ये एक मैंने चेंज देखा है कि मैं ट्रस्ट नहीं कर पाती। मैं अच्छा ठीक है जी, हर वो कहते हैं ना हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता, तो वही बात है। तुम हर एक से हाथ ना मिलाओ ना। हमें करना पड़ता है कभी कभी, लेकिन ये होता है कि अब दोस्त किसी को नहीं मैं कहती। हाँ जी अच्छा है, आपके साथ अच्छे हैं, बात की। और इसके अलावा मुझ में जितना गुस्सा बहुत था, मैं सेट पे नहीं करती, मैं काम के दौरान इतना गुस्सा नहीं करती, तो मुझ में ये भी एक माया जब ज्यादा मुस्कुरा रही हो तो इसका मतलब उसे बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है देखिए है ना? एक्टिंग यहाँ पे काम आती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, तो एज भी छुपाती हो तुम? नहीं यार एज नहीं छुपाती, बस मास्टर मतलब मैं कहूँगी मैंने मास्टर्स किया एंड आई एम स्टिल लाइक 20-21 नहीं मैं आई एम नॉट सीरियसली। ठीक है। सो बच्चों की एंटरटेनमेंट खास तौर पे हम अपने पाकिस्तान के लिए लेकर आए हैं इस पर, ताकि हमारे बच्चों के लिए जो भी एंटरटेनमेंट हो, कार्टून्स हो, प्रोग्राम्स हो, वो हमारी लैंग्वेज में हो। बहुत अच्छी बात है कि उर्दू में कार्टून आ रहे हैं। छोटे मेरे जो कजन्स हैं, छोटे बच्चे, वो भी मतलब पहले बैठ जाना नहीं समझ आ रही, भाई हर कोई गोरा नहीं होता, बैठ गोरा भी नहीं होता, और बाकी जो लैंग्वेजेस हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो अपने एक चीज़ मारे मैं अप्रिशिएट करूंगी इस चीज़ को कि हम लोग टर्किश ड्रामा को डब करके देख रहे हैं, लेकिन अभी आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास टर्किश सिंगर्स बैठे हैं हमारे शो में, हमने उनको हायर किया है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि हम एटलीस्ट मतलब उन्हीं लोगों को प्रमोट करें। अब हमारे शो में वो आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। और दूसरी बात ये कि एक और शो में भी हम यही बात कर रही थी कि इट इज़ अमेजिंग कि आप इंफॉर्मेशन हासिल करें, एजुकेशन लें, लैंग्वेजेस सीखें, कल्चर्स में जाएं, लोगों से मिलें, अपना कल्चर वहाँ ट्रांसफ़र करें, लेकिन अपने उसको ना भूलें। बिल्कुल। अब मुंह टेढ़ा करके अंग्रेज़ी बोलने का ये मतलब नहीं है कि मैं उर्दू गलत बोलूँगी। ठीक है, आप अपना आइडेंटिटी भी रखें और बाकी भी दुनिया की फ्रेंच सीखें, स्पेनिश, व्हाटएवर, जहाँ भी जाएं। और इट इज़ गुड कि आप जिस कल्चर और जिस माशरे में जाएं वहाँ एडजस्ट हो सकें, उसकी अपनी खूबसूरती है, लेकिन अपनी आइडेंटिटी अपने आप को मत भूलें कि आप क्या हैं, जो हम यही रहेंगे ना। हाँ एग्जैक्टली, देन हम पाकिस्तानी हैं। तो माया, दिस इज व्हाट वी हैव। आज हमारे पास अपनी ऑडियंस के लिए ये सारे प्रोग्राम्स हैं। आई थिंक देखे जा सकते नहीं, बहुत शौक से देखने चाहिए। हम लोग मतलब बाकी ड्रामा जितने शौक से देखते हैं, तो फिर ये चीज़ें कार्टून्स बच्चों के, ये प्रोग्राम जहाँ पर हम बैठे हैं, तो क्यों नहीं। अच्छा ये तो तुम कह रही हो, लेकिन मैंने सुना है तुम मॉर्निंग शोज पे नहीं जाती हो। मैं बहुत कम जाती हूँ, वो इसलिए नहीं जाती कि यहाँ पर आप और मैं बैठे हैं, कोई भंगड़ा नहीं बज रहा, शादी के वो बाजे नहीं बज रहे। फॉर गॉड सेक प्लीज इसको बंद कर दें। आप आराम से बैठ के भी रेटिंग्स ला सकते हैं जिस तरह की आ रही है। प्लीज बस कर दे, बहुत हो गया। मतलब हर चीज आप मतलब प्रोग्राम में दिखाई जा रही है, इन्फॉर्मेटिव नहीं रहा, सिर्फ मतलब रेटिंग के लिए कुछ भी करे, है ना, रेटिंग के लिए कुछ भी करेगा। अच्छा मुझे बताओ, क्योंकि हमारा इतना हाई मेंटेनेंस किस्म का लाइफस्टाइल होता है, एंड यू वर्किंग एंड मेकअप एंड बाल और ये और वो, इतना स्प्रे लगा दिया आज मेरे बालों में, मैं सोच रही हूँ कि मैं ये निकलेगा कैसे। तो बड़े मसले हैं हम लोगों के, आपको पता नहीं है। अच्छा तो ये बताओ कि व्हाट इज योर रिजीम, मेकअप एंड स्किन केयर की रिजीम? मुझे मैं ज़्यादा मेकअप अप्लाई नहीं करती। मुझे होता है कि अच्छा आप कर लिया, ख़त्म हो गया, फ़ौरन से पहले वाइप के साथ रिमूव किया, और जितना हो सकता है मैं मेकअप से दूर ही रहती हूँ रूटीन लाइफ में भी। तो जितनी डिमांड होती है उतना हो गया, अदरवाइज नहीं। बाकी हाँ मैं एक प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। हाउ डू यू रिमूव द मेकअप? जैसे मैं वाइप से 2-3 वाइप्स आप इस्तेमाल भी कर लें, तब भी मुझे होता है कि ये उतरा नहीं है। उसके बाद फेस बहुत डेफिनेटली फेस वॉश मैं तो आई यूज बेसन एज वेल। अच्छा नहीं, मैं दही कभी अप्लाई कर, किसी ने मुझे कहा टमाटर का पेस्ट लगा लो, वो लगा लिया, कभी किसी ने कहा कुछ कर लो, कर लिया। बस हर कुछ करने के बाद भी स्किन वैसी रहती है। कुछ नहीं बदलता स्किन। और हेयर? हाँ ऑयलिंग बहुत, जिस आप कह रही थी ना आज मुझे ऑयल चाहिए, तो मुझे ऑलिव ऑयल ज्यादा सूट करता है। अच्छा मुझे नहीं वो करता, मुझे बाकी आलमंड ऑयल हाँ वो कुछ तरह के कर जाते हैं, लेकिन ये कि मुझे करनी होती है। आपने स्प्रेज नहीं मैं यूज़ करती, मैं बाकी वो चीज़ें जो मूव्स वगैरह वो यूज़ नहीं करती। तो बाल मतलब बचाने होते हैं, रखने होते हैं, ब्यूटी भी होती है, ब्यूटी भी होती है। बिल्कुल सही है, ब्यूटी के लिए काफी ड्यूटी भी देनी पड़ती है, बहुत ज्यादा देनी। Jiren, how do you take care of your skin? I was asking her that because of the shows and otherwise, you know, I know you guys also use makeup, a lot of makeup, don't you? How do you remove your makeup? How do you take care of your skin? Generally, I try to keep clean, you know, just How? washing with water. What do you use? Not. I don't want to use cosmetics, you know, chemical things so much. But That's you know, better. sometimes you mean your we have makeup to. is organic? The one No. But I have to. Makeup is. I have to.
For example, today I put some cucumber. Oh, a bit wow. for the moisturizing. Yeah. Yeah, like this, not so much. And what about you? How do you take care of your skin? And your hair and your everything? Just drink And water. your looks? Just drink water. You drink water? And after Plain water. And Mariam, how do you take care of your skin and hair? I'm not caring so much, but the best way is apricots. Apricot pure, it's making really smooth. You put, Mariam, you face. eat apricots or you put apricots on? Yeah, exactly. You can eat and you can also put some pure with Paste of strawberries maybe. आड़ू ना? हाँ. हाँ. मरियम तो आड़ू खाती भी हैं और मुंह पे भी आड़ू की पेस्ट लगा लेती हैं. Yeah. And she looks like an apricot as well. It is cute. And Ismail, वो पानी पीते हैं. I think it is not about just आप क्या मुंह पे लगाते हैं और कैसे साफ अपनी स्किन रखते हैं. डाइट बड़ी important है कि आपकी बॉडी के अंदर और आपके माइंड के अंदर क्या जा रहा है. That is also very important. नेगेटिविटी बहुत होती है लाइफ में. हाउ डू यू कीप अवे फ्रॉम दूर दैट? रहती हूँ. कोई बात कर रहा है उधर मुँह कर लो, गाने सुनती रहती हूँ सेट पे भी. और वैसे अगर मुझे लगता है कि इससे कुछ है प्रॉब्लम मुझे, तो मैं खुद ही उसे ओके बाय कर देती हूँ. ओके बाय. ओके बाय जी प्लीज. अस्सलाम वालेकुम का फोन नहीं उठाती, उसको अवॉइड करती हूँ. नहीं मिलना भाई, मुझे जिंदगी में और बहुत टेंशन है. हाउ सोशल आर यू? कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत इजीली दोस्त बना लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो इंट्रोवर्टेड होते हैं. तो क्या तुम सोशल हो, ज्यादा मिलती हो लोगों से, फ्रेंडली हो? फ्रेंडली मैं हूँ लेकिन लोगों से इतना मिलती नहीं हूँ जितने आपकी गैदरिंग्स होती, गेट टुगेदर्स होते हैं, मैं नहीं जानती. आप कितने भी रिजर्व्ड हो जाएं, कई दफा आपको जाना पड़ता है. ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं अनवांटेड किस्म की. तो आपकी क्या एडवाइस है कि वर्किंग लेडीज को उनको कैसे टैकल करना चाहिए? हाउ डू यू डू इट? चपेट मार देती है, उठ के रैकेट मार दिया, बॉल अच्छा, उठा कभी के मारा? मैं नोट किया आपकी मारा तारीफ किसी भी नहीं मारा. आपने कभी देखा कि आपको कहा जाता है नहीं तुम कितनी अच्छी लग रही, तुमने कितने अच्छे कपड़े पहने, लेकिन अगर तुम ये ना पहन के ज्यादा अच्छा लगता. भाई क्या है, तुम तारीफ कर रहे हो, क्या कर रहे हो मेरे साथ? तो जरा इन चीजों से इंसान दूर रहे तो वो खुश ही रहता है. उसको पता उसने क्या पहना, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, वो खुद ही ठीक है. ठीक. तो इस तरह से नहीं करना चाहिए. ओके चले. ओह लुक एट दिस बोट्स. That's so pretty. Hi. Oh, okay. देखिए, people are happy. अच्छे लोग हैं, खुश हैं, खुश लोग हैं, और हम भी चाहते हैं कि हमारे लोग भी खुश रहें. तो प्रोग्राम अभी हमारा है, माया इज हियर, और अभी हम मरियम के पास भी जाएंगे. हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं. जुरैन, लेट्स टेक अ ब्रेक. After the break, sunrise from Istanbul. मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है. बोर तो नहीं हो रही हो? व्यू देखिए आप, मुझे घर कितना ऊपर बना हुआ है, इतना अच्छा लग रहा है. अभी शुक्र है सन भी नहीं आया, सूरज वरना एक्शन पे निकल आता है. सनब्लॉक लगाया? नहीं, यही तो मसला. इसीलिए सनब्लॉक है, लगा लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें बहुत भूख लग रही है. And I think Mariam, we are coming. Come here. All right. I'm waiting for you for the breakfast. Okay. आ जाओ, Maya, come. Wow, this looks like a paratha. ये तो पराठे बनाए हैं भाई. Come here, इधर आ जाओ. Wow, this looks great. This is a traditional Turkish breakfast. Okay. These are olives, yeah. We like olives. गिर गए. अच्छा बताओ. Okay. We have some feta cheese here. It seems like Greek, but no. It's more different than Greek cheese. It's more salty, more tasty for me. Feta cheese, yeah. We have menemen here. It's made with the peppers, green peppers, tomato, egg, and some cheese.
but it must be a melting cheese. We are using kaşar cheese. It's a Turkish yellow Kaşar cheese. Acha, all right. Let's do this again. All right. How many eggs did you use in this? 5 eggs. 5 eggs. 5 ande. And what cheese have you used? Kaşar cheese. It's a Kaşar Turkish cheese, but you can use every cheese which is melts. For example, mozzarella is also good. इसमें जो cheese use करनी है वो वाली करनी है जो mozzarella type जो melt हो सके, which can melt. What else have you put in? I put some spices, some chilies for you, and also you can put whatever you want. But thyme or oregano is really nice. Thyme और oregano, ये वो herbs हैं जो आप इसके अंदर डाल सकते हैं. अच्छा ये है, ये cheese कौन सी पसंद है तुम्हें? I love feta cheese. I love feta cheese. तुम्हें कौन सी पसंद है? I don't like cheese. It's that ना ये चीज ना वो चीज. ना वो चीज कोई चीज नहीं. किस किस्म की चीज पसंद है? Okay, and what is this? This butter and honey. Yummy! It It seems seems so yummy. Sometimes instead of butter we use clotted cream. So you stand on a treadmill. All right. Yeah. While doing the treadmill, you can have it. भाई मक्खन और honey अगर आप ये खाएंगे तो फिर आप सुबह से लेकर शाम तक jogging ही करते रहें. This food is not for you and me. This is for her. No, not at all. अच्छा, okay. But this is with this. Yeah. Crepe. Good, very good with this one, especially it's hot. ये हाँ ये देखिए ना ये crepe जो है just like a paratha, like pancake या paratha. This is yummy. Okay, so this is the salad with it. और ये जो है This is ajuka. Ajuka. Yeah. We made it with Ajuka, two kinds ajuka. of pasta. Sorry. Two kinds of paste. Two kinds of paste. One of them is tomato paste, Tomato and paste. the other one is red pepper. रेड पेपर पेस्ट और लाल मिर्च की पेस्ट और टमाटर की पेस्ट के साथ बनाया. We add too much cumin inside on it. Cumin. And some basil we have on it, Turkish Asha. basils. Okay. And some nuts on it. It's traditional walnut, but I used today some almonds and cashews also. Okay. इस सॉस के अंदर हम सारी आपको तरकीब बताएंगे इसके बनाने का तरीका भी. अच्छा इसके अंदर ये सारे नट्स हैं. So she also cooks. Wow. Yeah. So why don't you give her a useful tip? मैं मरियम से कह रही हूँ कि जो लोग भी किचन में खाना, मैं उनमें से नहीं हूँ वैसे, खाने बनाने का शौक रखते हैं या खाना बनाते हैं तो हमें कोई यूजफुल टिप दे. एनी टिप. For example, you are preparing boiled eggs. Yeah, okay. Sometimes you know it gets make you crazy while peeling the outside. जब आप अंडे उबालते हैं तो कई दफा कुछ छीलते हुए जब छीलते हुए हाँ ताकि ये छिल क्यों नहीं रहा है, क्या मसला है? Then you put 2 or 3 pinches of salt or 1 tablespoon of salt inside the boiling water with the eggs. It peels very easily. while boiling. Yeah. Right, okay. तो अगर आप गर्म पानी में उबलते हुए पानी में जब अंडे आपके उबल रहे हो उसके अंदर 1 चमचा नमक का डाल लें या आधा चमचा या 1 चमचा, it depends. हाँ. Depends. जितना आपके घर में अवेलेबल है, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं. भाई आप अंडे अफोर्ड कर रहे हैं तो नमक कर ही लेंगे. So अगर आप वो डाल दें तो जो जब आप उसको पील करेंगे, छीलेंगे तो वो आसानी से छिल जाएगा. Great. Nice. So maybe next time Maya, when you come on our sets, you should cook something. बिरयानी. कराची में तो बिरयानी खा खा के मैं इतना तंग आ गई कि मैंने छोड़ दी बिरयानी खाना. What kind of biryani do you make? एक तय वाली जो होती है, आपका मसाला जो अलग से तैयार होता है. और कौन सी होती है? एक और मिक्स भी जो बनाते हैं अक्सर लोग हमारे लाहौर में स्पेशली कि मिक्स भी बना ली, सब कुछ डाल दिया बिरयानी में, दम लगा दिया. तो यकदम बनने वाली जो बिरयानी होती है, मैं जो वो तय वाली बनाती हूँ. अच्छा वो जो लेयर्स के साथ मसाला और उसके बाद राइस, फिर उसके बाद वो लगती भी खूबसूरत है, वो टेस्टी भी होती है. We have a very popular dish over there in Pakistan that is called biryani. Biryani, yeah. So you also have biryani. What Yeah, kind we of? have. We call it biryani kebab in east side of the country. Yes, we learned from you. That food. Oh That's yes. why. इनकी भी एक बिरयानी की किस्म है. It is called biryani kebab. बिरयानी कबाब. Biryani kebab. So maybe we can make that. Yeah, why not? Yeah, in our next show, Next we show should we can make make that. biryani. बिरयानी कबाब हम आपको बनाना सिखाएंगे यहाँ की जो बिरयानी है. Yeah, why not? Great. So आप लोग जाइए जरा इंग्रेडिएंट्स और खाना बनाने की जो सारी तरकीब है इसको नोट कर लीजिए, इसको बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा. एक तमा अज्जा, दूध 1.5 कप, आटा 1 कप, अंडे 2 अदद, तेल 3 खाने का चम्मच, नमक 2 चुटकी, चीनी 1 चाय का चम्मच, मक्खन फ्राई के लिए.
तरकीब: सबसे पहले बर्तन में आटा डालकर इसमें नमक, तेल, अंडे और चीनी डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें और दूध की मदद से गूंथकर पेड़े बना लें। इन पेड़ों को बेलन की मदद से रोटी की शक्ल देकर मक्खन में दोनों तरफ से फ्राई कर लें और मजेदार इक्तमा तैयार है। मैनीमन: अज्जा: अंडे 5 अदद, टमाटर 6 अदद, हरी मिर्ची 2 अदद, तेल 1 खाने का चम्मच, मक्खन 2 खाने के चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 खाने का चम्मच, थाइम 1/2 खाने का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, पनीर आधा कप। तरकीब: सबसे पहले मक्खन और तेल गरम करके इसमें हरी मिर्ची और टमाटर डाल दें, हल्का सा पका लें। अब इसमें अंडे और तमाम मसाले शामिल कर दें और इतना पकाइए कि अंडे अच्छी तरह पक जाएं। आखिर में कद्दूकश की हुई पनीर डालकर गर्मा गर्म सर्व करें। अजूका: अज्जा: टमाटो पेस्ट 2 खाने के चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 खाने के चम्मच, पिस्ता बादाम अखरोट 1 कप, जीरा 1 खाने का चम्मच, साबित लाल मिर्चें 1 खाने का चम्मच, थाइम 1 खाने का चम्मच, जैतून का तेल 3 खाने के चम्मच। तरकीब: बर्तन में तमाम अशिया डालकर बस अच्छी तरह मिक्स कर लें। मजेदार अजूका तैयार है। जी, आई होप आप लोगों ने सारे इंग्रेडिएंट्स नोट कर लिए होंगे और रेसिपी भी नोट कर ली होगी। अगर मिस हो गया है या कोई चीज़ रह गई है तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके नोट कर सकते हैं, वहाँ पे अवेलेबल है। माया की तरफ आते हैं। माया हमारी गेस्ट हैं, बहुत प्यारी सी, और इन्होंने आज हमें टाइम दिया एंड वी आर वेरी हैप्पी। मुझे एक बात बताओ कि पीटीवी के ज़माने से, बचपन से हम लोग टीवी देखते आ रहे हैं, किस किस्म की प्रोग्रामिंग होनी चाहिए, क्योंकि अब इतनी वैरायटी आ गई है तो कई दफ़ा कंफ्यूजन हो जाती है। डेफिनेटली मारिया, मैं एक बात कहूँगी कि हम लोग प्लेस तो लेकर आते हैं, एक बहुत बारीक सी लाइन है वल्गैरिटी में और मॉडर्निज्म में। हम लोगों को लगता है कि इस तरह से दिखाना, एक्सपोज कर, क्या हम तो मॉडर्न बन गए। आप लोगों का मैसेज पॉजिटिव होना चाहिए। आप लोग सोसाइटी को क्या दे रहे हो, आप लोगों ने क्या दिखाया है, वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए। हम लोग बन तो जाते हैं दूसरों की तरह, अच्छा ये भी पहनना है, वो भी करना है, हमें ये भी करना है, लेकिन क्या आपको लगता है कि हम सोसाइटी को वो मैसेज दे रहे हैं? अब मैं अगर पीटीवी के ड्रामास तब तो नहीं चले, अभी ब्लैक एंड वाइट जब रिपीट होते हैं, खुदा और बस्ती देखा, एक आगोश मुझे बहुत पसंद था, वो देखती थी, तो उनमें एक मैसेज था, उनमें लड़कियां कवर्ड भी थी, कवर्ड इट डजंट मैटर, लेकिन एक अच्छे तरीके से आपको बताया जाता था। एक टेलीविजन एक ऐसी चीज है जो आपका फैमिली मेंबर होता है, फैमिली मेंबर, और फैमिली के साथ बैठ के आप देखते हो। बिल्कुल बिल्कुल। सो वो आपका एक फैमिली मेंबर होता है, आपके घरों के अंदर टेलीविजन होता है, तो वो एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पोजीशन आ जाती है। जैसे तुम एज एन एक्ट्रेस भी ये समझती होगी कि जब तुम पाकिस्तान में अपना कोई ड्रामा या कोई फीचर या कोई चीज़ साइन करोगी तो तुम कॉन्शियस होगी टेलीविजन के लिहाज से कि ये चीज़ लोगों के घरों के अंदर और फैमिलीज देखेंगी, तो क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। मैं अक्सर ड्रामास करते हुए भी फिल्म को जब मैं कर रही थी तो अच्छा मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं, कोई ऐसा ना कर पाऊँ कि मैं कल को अपने बाबा के सामने जाऊँ या किसी और के सामने जाऊँ तो वो मुझे एटलीस्ट अच्छी तरह से देखकर कहें कि हाँ ये मेरी बेटी, इसने अच्छा काम किया है, कि इन्होंने अच्छा काम किया। बिल्कुल, तो यही दिस इज मैं ये कहना चाहूँगी कि दिखाए भी जा रहे हैं, मतलब अभी जो टर्किश प्लेस भी जो हमारे दिखाए जा रहे हैं यहाँ पे, वो ऐसे हैं कि मैं अपने भाई और अपने बाबा या अपनी मम्मा के ब्लर किए बगैर एग्जैक्टली काटे बगैर। और ऐसा नहीं है कि भाई उस तरह की इंटरटेनमेंट अवेलेबल है तो फिर इस तरह की इंटरटेनमेंट भी अवेलेबल है इस चैनल पे। मैं सबसे ज़्यादा जिस बात को ओन करती हूँ और आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट कि 3 आवर्स 3 घंटे की हमारे अपने बच्चों के लिए इंटरटेनमेंट है। इसके अलावा हमारे पाकिस्तानी ड्रामे हैं, इसके अलावा डब हुए भी ड्रामे, डॉक्यूमेंट्रीज हैं, फीचर है, तो हर किस्म के और हर एज ग्रुप के लिए बिल्कुल इट इज़ अवेलेबल। तो बल्कि यू शुड सी इट एंड हमें फीडबैक देना अपनी कि तुम्हारी फैमिली को, फ्रेंड्स को कैसा लगा एंड व्हाट इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं, क्योंकि ये आपका चैनल है, ये दिस इज फॉर यू। तो आप क्या देखना चाहते हैं? अब आपने कहा माया को देखना है तो हमने लाके इनको बिठा दिया है, हाँ, तो शी इज देयर। अच्छा, मुझे ये बताओ कि फैशन के बारे में क्या ख्याल है? आर यू फैशनेबल, फैशन कॉन्शियस, या किस किस्म का फैशन? नहीं, आई एम नॉट दैट फैशन कॉन्शियस, मैं ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ। मुझे लगता है कि जो मैं पहन के मुझे अच्छा लगता होगा मैं वही पहनती हूँ जो मुझे सूट करता है। अच्छा, स्टेटमेंट क्या है तुम्हारी? जैसे
what is fashion to you? जैसे मेरे लिए anything fashionable हो लेकिन you have to be comfortable. Exactly, ये मेरा point है कि मैं जिसमें comfortable feel कर रही हूँ. I love to wear eastern, I love to wear western, लेकिन जिसमें मेरे खुद का सूट करे, comfortable हो. अब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और फिर वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा. वेलकम बैक जी, वेलकम बैक. सनराइज फ्रॉम इस्तांबुल के साथ हम आपके सामने एक दफ़ा फिर हाजिर हैं. ब्रेक के बाद माया अली हमारे साथ मौजूद है. माया, योर नेम माया अली और माया तनवीर? नो, माय एक्चुअली नेम इज़ मरियम तनवीर अली और माया मेरा निक है. मुझे बचपन तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन कुछ अरसे बाद, टाइम बाद मुझे मेरा नाम चेंज करना था. लेकिन वो एक होता है, नहीं फिल्मी नहीं, मैं बहुत बीमार रहती थी तो मुझे मेरी अम्मा को किसी ने कहा कि इसका नाम चेंज कर दो. तो बाबा ने कहा कि नहीं, इसकी दादी ने नाम रखा तो यही रखना है. तो उसके बाद फिर अम्मा ने कहना शुरू किया, ऐसे ही फिर वो एक नाम, एक निकनेम के नाम से कहते हैं ना कि नाम आपके आदाद को जमा करके. हाँ, माय ग्रैंडफादर ऑल्सो, मेरे दादा ने हम लोगों के नाम जो थे वो पता नहीं क्या करते हैं वो, कि ये मुबारक नाम ये है, अच्छा, ये भारी नाम है. तो उस तरह से मेरा नाम हुआ. फिर उसके बाद जब मैं फील्ड में आई थी तो मेरा एक प्रोग्राम में होस्ट करती थी, वो मेरा फ्रेंड करता था. तो उसने कहा कि तुम माया के नाम से आ जाओ, माया ही है, चलो कर लेते. लेकिन मैंने बता दिया था कि मैंने कोई चेंज नहीं किया, कोई फिल्मी नाम नहीं है मेरा. माया मेरा निकनेम है, मरियम मेरा रीजन नेम. अच्छा ठीक है, बट करीब करीब है ना. माया, मरियम, मरियम ओके. अच्छा, वही मैं कह रही हूँ कि ये बातें, आर यू सुपरस्टिशियस? जैसे काली बिल्ली गुजर गई तो ये नहीं किसी ने पूछा कि बिल्ली का क्या हाल हुआ, आपने ये सोचा कि मेरे साथ कुछ बुरा होगा? नहीं. अच्छा, शीशा गिर गया, ग्लास टूट गया, शीशा गिर गया, फिर आप ख्वाब देखो, ख्वाब देखो बुरा, सुबह उठ के टेंशन में बंदा मर जाए, आँख फड़क रही है. आर यू सुपरस्टिशियस? नहीं. प्रोजेक्ट शुरू किया है, फिल्म हिट होगी, नारियल फोड़ना है, किसी पता नहीं बकरा खा के निकलना है घर से बाहर, मीठा खा के, नहीं ये नहीं है बिल्कुल. आप कॉन्फिडेंट हो, आपको पता है आपने क्या किया है. अगर कुछ गुजर भी गया कुछ है तो ठीक है, पहले कलाम पढ़ लो. आप कितनी सूरतें, कितनी आयतें आप उनको पढ़ो, ठीक है, सही हो जाएगा. बस यू नॉट सुपरस्टिशियस? नहीं, नॉट एट ऑल. हमारी क्योंकि सोसाइटी में ये एक चीज़ है जिसको आई थिंक एक्सप्लॉइट भी बहुत ज़्यादा होती है. बहुत ज़्यादा. मतलब बेचारी बिल्ली पता नहीं कहाँ से गुजर की, गाड़ी मोड़ लो, बस यहाँ से मोड़ लो. है ना. अच्छा, बचपन में कैसा था तुम्हारा बचपन? बहुत अच्छा था, बहुत मज़े का, बहुत एंजॉय किया मैंने बचपन. अभी भी बहुत मिस करती हूँ अपने बचपन को. बचपन की शरारतें, छोटे होते आप कहीं पे भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. अब जाके खैर अब तो मतलब आप टीवी पे जब आ जाओ तो आप बिल्कुल ही वो खत्म हो जाती है आपकी पर्सनल लाइफ. खड़े हो कि आप आलू चने नहीं खा सकते, गोलगप्पे नहीं खा सकते. ये चीज़ें मैं बहुत मिस करती हूँ. अच्छा, बहुत. तो अच्छा, ट्रैवलिंग का शौक है? बहुत है, काफ़ी ज़्यादा है. मुझे है कि अच्छा नई नई जगह एक्सप्लोर करूँ. अभी टर्की मेरा फर्स्ट टाइम था एक्सपीरियंस, तो मुझे आखिरी नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता. अभी तो मुझे बहुत कुछ देखना. मैं बोट चल रही है, मैं एंजॉय कर रही हूँ, कभी इधर देख रही हूँ, कभी इधर. हाँ. अच्छा, कुछ लोग होते हैं एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे बंजी जंपिंग करनी है या कोई पैराग्लाइडिंग करनी है, पैरासेलिंग, इस तरह के कोई शौक है? मैंने पैरासेलिंग किया है थाईलैंड में. मुझे लगा था कि मर जाऊंगी अगर मैंने ये पैरासेलिंग वो वाली है ना जो बोट के साथ. हाँ, वो मैंने भी की. जब मैं ऊपर जाऊंगी तो अब नीचे नहीं आऊंगी, लेकिन मतलब मुझे लगा कि अगर मैं ना करती तो क्या मिस कर देती मैं. लेकिन पैराग्लाइडिंग का है मुझे करना है. अच्छा, हमारी जो हमारी सोसाइटी है, जाहिर है हम पाकिस्तान में रहते हैं और वहाँ एक ख़ास तरीका है रहने सहने का, रिवाज है हमारे अपने. आजकल की नई लड़कियों को जो तुम्हारी एज ग्रुप की हैं या तुम्हारे से छोटी हैं, क्या तुम्हारा मैसेज होगा या क्या तुम उनको एडवाइस दोगी जो लाइफ के अंदर, लाइफ में व्हाट हैव यू लर्न, तो क्या मैटर करता है सबसे ज़्यादा? आपका बिहेवियर बहुत मैटर करता है, आप खुद कैसे हो बहुत मैटर करता है. आप मुझे सब चीज़ें ऐसे प्लेट में नहीं मिली कि अच्छा माया आ जाएगी तो उसको मिल जाएगा. बहुत मेहनत करनी पड़ती है. मेहनत इन अ वे कि अगर आप एक्टिंग कर रहे हो या गाना गा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो
तो दिल से करो। अब बहुत सी लड़कियां मैं देखती हूँ मारिया अभी जो आई है, मेरे बाद भी बहुत सी लौट आई है, तो आती हैं और मेकअप किया और बस हाँ अब मुझे एक कप चाय चाहिए, प्लीज मैं नहीं कर सकती है। नहीं, आप क्या कर रहे हो भाई, आपसे सीनियर्स बैठे हैं, आपसे सीनियर्स बैठे हैं, अपने सीन का इंतजार करें। अगर आपसे डेट ले ली है तो इसका मतलब आप उनके साथ बांध दो, तो बस खामोश हो जाओ। लेकिन 10 to 10 10-5 भी हो सकता है ना। तो ये चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ती हैं और करनी चाहिए आपको। अपने जो बड़े हैं आपके साथ रिस्पेक्ट, मुझे लगता है अब ऐसे बहुत से एक्टर्स होते हैं जूनियर, इनके सामने सीनियर एक्टर खड़े हैं और मुंह जरा इधर होता है उनका कि कौन है ये, प्लीज आके मिलो। इन्होंने से सीखा है आप लोगों, इनकी वजह से आप आज यहाँ खड़े हैं। प्लीज हाँ, लेकिन ये भी बात है कि ये चीज़ें आपके घर से, आपके माँ बाप से, आपकी फैमिली से आपके अंदर बचपन से इनग्रेन्ड होती हैं या डाली जाती हैं और ये आपके कैरेक्टर का हिस्सा होती हैं। तो हमें ये चीज़ भी नहीं भूलनी चाहिए कि आप जो हैं और आपका जो बिहेवियर है वो उस चीज़ की अक्कासी करता है, ये रिफ्लेक्शन होता है जो आप अपने घर से exactly. या अपने स्कूल से, तालीमी इदारों से, या मेरा ख्याल है घर से सीख कर आते हैं। तो वही मैं समझती हूँ कि आपके पेरेंट्स की, घर वालों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि यही चीज़ें आपके सिर्फ काम में काम नहीं आती हैं बल्कि आपकी आम जिंदगी में आप जाने पहचाने जाते हो अपनी आदतों से। तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत मैटर करती हैं ये चीज़ें। ये चीज़ें मुझे लगता है कि बहुत मैटर करती हैं, आपकी फैमिली वैल्यूज़ और ये आप ट्रांसफ़र करते हैं अपनी अगली जनरेशन में भी। खैर, ये तो सीरियस बातें हो गई बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे एनर्जी चाहिए मारिया, मतलब इतना खूबसूरत एनवायरनमेंट है ना, और रोमांटिक भी हो रहा है। और ये जब भी मैं जुरैन को कहती हूँ, हमें कोई ना कोई रोमांटिक गाना सुना देती हैं। तो जुरैन, what song do you have for us today? You know, Stand By Me. Stand By Me. That's a beautiful song. When the night is gone and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, all the mountains should crumble to the sea, I won't cry, no, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. Who did you sing this song for? Jurein is getting married. Really? Soon. Congratulations. So, Jurein की शादी होने वाली है and बहुत मुबारक। और मेरे ख्याल में ये गाना वो तभी इतने मजे से गाती है ना, ऐसे इतना वाकई सामने कोई बैठा। यहाँ का म्यूजिक और अच्छा, she sings in Urdu as well. Oh really? हाँ, she sings in Urdu and other languages भी. Can you please sing a song for me in Urdu? Can you please sing a song for me in Urdu? Maybe 2 lines, just 2 lines. Yeah, just 2 lines. That's it. Yeah. Okay. Üsküdar'a giderken
aldı da bir yağmur. Katibimin setresi uzun, eteği çamur. Katibimin setresi uzun, eteği çamur. İşkin aradı da yara, işkin aradı. İşkin aradı da yara, işkin aradı. Dekke tuchko zinda di minne nazaradu. Mere sari tanai minne naradu. İşkin aradı da yara, işkin aradı. İşkin aradı da yara, işkin aradı. Very nice. और ये डबिंग के बगैर था. ये डबिंग के बगैर था, लिप सिंक भी नहीं था. Very nice. Thank Beautiful. you. अच्छा लगा ना? बहुत मजा है ना? आया. देखो इनको भी हमने लगा दिया काम पे हमने. उर्दू जुबान पे लगा दिया. बेशक और बिल्कुल डबिंग के बगैर था सब कुछ. बहुत मजे का. Beautiful. Really beautiful. Beautiful. अब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और फिर वापस आते हैं हमारे साथ में. वेलकम बैक टू सनराइज फ्रॉम इस्तांबुल. माया हमारे साथ मौजूद हैं और माया मैं ये सोच रही थी आजकल आप भी जानते हैं हम सब के लिए इनएविटेबल हो गया है, हम इस चीज़ के बगैर रह ही नहीं सकते हैं. वो है हमारा सोशल मीडिया, फ़ोन, मोबाइल, स्काइप एंड ऑल दीज. ये जो सारी चीज़ें हैं और ये कुछ अरसे से आई हैं हमारी ज़िंदगी में. एक वो वक्त था जो नहीं भी थी. वो फ़ोन होता था एक घर में, फिर वो फ़ोन आता था, मैसेज होता था एंड ऑल दैट. और उससे पहले क्या होता था? कबूतर होते थे. कबूतर के जरिए मैसेजेस दिए जाते थे और क्या क्या तरीके थे हमारे. खत लिखना, यू नो पेन पॉल्स होते थे. अब तो यू पत्थर होते हैं, पत्थर के ऊपर लिख के ऐसे करके है ना. ये मुझे लगता है इसके साथ हो चुका हुआ है. हाँ नहीं फिल्मों में देखा मैंने बड़ा कुछ. क्या सीखा कुछ, ऐसा किया कुछ? तब तक फोन वगैरह आ चुके थे. अच्छा तो क्या है तुम्हारे लिए? आर यू एक्टिव हो सोशल मीडिया? बहुत ज़्यादा हूँ मैं हर टाइम कोई व्हाट्सएप पे अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, फैंस के साथ, इंस्टा पे, फेसबुक पे. कभी ना चाहते हुए भी, क्योंकि आपको अपने प्रमोट करना पड़ता है ड्रामा इंटरैक्ट. अच्छा ये बात मुझे बताना, क्योंकि मेरा ख्याल है ये सबके पास हो चुका है कि जिसको आपने मैसेज नहीं भेजना उसके बारे में किसी और को भेज रहे हैं और उसको चला जाता है. एग्जैक्टली मेरे साथ हुआ है और बहुत बुरा हुआ है. प्लीज बताओ क्या हुआ मेरे साथ. मतलब मैं एक लड़की मतलब इंडस्ट्री की नहीं थी लेकिन मैं उसके बारे में बात कर रही थी और गुस्से में बहुत थी कि अच्छा उसने क्यों किया, उसकी शक्ल नहीं देखनी. और मैं वो टाइप कर रही हूँ और भेजना मुझे किसी और का था. और जब वो गए मारिया, आई फेल्ट सो बैड. उसी टाइम पे मेरा गुस्सा खत्म. उसने मुझे फोन में आपने मुझे ऐसा कहा है. मैंने कहा यार मैंने आपके लिए नहीं लिखा, और नाम भी लिखा हुआ था कि वो ये बहुत बुरा होता है यार. ये बहुत बुरा होता नहीं है जिसके बारे में लिखा है. लेकिन उसको पता चल गया था क्योंकि वो बात ही उसी के बारे में. तो देखो ये फिर ये चीजें भी हो जाती हैं. तो प्लीज बार बार. और समटाइम्स ये भी होता है कि आप फोन बंद कर देते हो और फोन बंद नहीं होता. इससे कॉल मिल जाती है. बहुत बुरा होता है ना. तो ये भी प्रॉब्लम्स हैं फोन के साथ, जो टच फोन्स के साथ बहुत इश्यूज हैं. ये बहुत सारे इश्यूज हैं. पर मेरा ख्याल है एक ऐप वो भी आ गया है कि अगर आप
मैसेज करें तो वो मैसेज जाता नहीं है, वो रुक जाता है एंड कोई ऐप नया आया है। मुझे जरूर बताइएगा क्योंकि ऐसे बहुत हादसे हो चुके हैं, रिलेशनशिप्स खत्म हो चुकी हैं और कुछ लोग बच चुके हैं इस वजह से। अच्छा, ये हमारा सेगमेंट है मैसेज इन अ बॉटल। हैव यू सुना होगा कि बॉटल के अंदर भी मैसेज डाले जाते थे और वो पानी में महीनों देखा, एक कार्टून्स में भी डेफिनेटली देखा कि अच्छा डाल दिया और वो चला गया तैरता और सही बंदे तक भी पहुंच जाता है। देखे ना, मतलब पता होता है उसको कि कहाँ जाना है। So anyway, ये हमारा एक सेगमेंट है मैसेज इन अ बॉटल। मैं आपको आई एम गोइंग टू गिव यू दिस, ये पकड़ें, ठीक है, और ये मैं आपको दूंगी पेन। आपने करना ये है दैट आपने शोबिस फ्रेटर्निटी में हम यहाँ पे बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं, किसी के लिए भी कोई मैसेज लिखना है, किसी के लिए अब वो कुछ भी मैसेज हो सकता है, वो हम भी नहीं पढ़ेंगे। और जब वो शख्स, वो सेलिब्रिटी, वो गेस्ट हमारे इस शो में आएगा तो हम उसको ये बॉटल देंगे और कहेंगे ये है मैसेज फ्रॉम माया आपके लिए, और वो खोलेगा और वो पढ़ेगा और तब हमें पता चलेगा कि आपने क्या लिखा है। कुछ भी हो सकता है, कोई तकाजा हो सकता है, कोई शिकायत हो सकती है, कोई इकरार हो सकता है। हाँ, इट कैन बी एनीथिंग। तो मैं बता दूं मैं किसको लिख रही हूं? वो तो आपको बताना पड़ेगा। ओके, मेरा फ्रेंड है उस्मान खालिद भट्ट, वही मुझे में बहुत अच्छे, तो उसके लिए मैं लिखती हूँ ये। ओके, अब मैं ये सोच रही हूँ कि अगर बहुत अच्छा दोस्त है तो क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। आप जो इतना करीबी और अच्छा दोस्त हो उसको तो खरी खरी भी सुना सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो तुम वैसे आर यू स्ट्रेट फॉरवर्ड? जैसे होता है ना, लोग होते हैं जो दिल में रखते हैं और कुछ लोग होते हैं जो मुंह फट होते हैं, मुंह पे बात कर देते हैं। What kind of a person are you? मैं somehow हूँ, लेकिन इतनी मुंह फट नहीं हूँ। अगर मुझे लगता भी है कि ये बंदा क्या कर रहा है, मुझे बताना चाहिए, लेकिन रुक जाती हूँ कि अच्छा वो हर्ट होगा, उसको बुरा लगेगा, चलो रहने दो, वो जैसा है खुश है, रहने दो। और अगर खुद बुरा लग रहा हो तो फिर अगर इफेक्ट कर रहा हो? नहीं कहती मारिया, नहीं, मुझसे कहा ही नहीं जाता, बस जी आप बहुत अच्छे हैं, हाँ ठीक है। ओह, यानी कि दिल में कुछ और ज़बान पे कुछ, लेकिन अच्छा पॉजिटिव ही होता है। ओके, तो उसके बाद हम इसको इस बॉटल के अंदर रैप कर देंगे, सील कर देंगे, और ओह, पूरी चिट्ठी मैंने लिखी है तुम्हारे लिए उस्मान। लिख दिया। अच्छा, अब इसको तुम ना ये लो, ठीक है, इस रिबन के साथ कोई काम भी करो ना, मैं देखूं तुम्हें काम क्या आता है। ये तो तुमने पूरा खत नहीं लिख दिया। मैंने वही लिखा, सिर्फ ये तो नहीं लिखा तुमने कि चिट्ठी लिखी है मैंने, हाय आई मिस यू कॉल मी। नहीं, मैंने जो लिखा है वो उस दिन बता भी देगा आपको। अच्छा ठीक है, ग्रेट। चले जी उस्मान, वी आर वेटिंग फॉर यू। जब आप यहाँ पे आएंगे तो फिर हम देखेंगे कि माया ने आपके लिए क्या लिखा है। फिर वो मुझे 2 गालियाँ देगा। हाँ ओके ठीक है, वो तो खैर हम देखेंगे, और उसके ऊपर फिर बीप लगानी पड़ेगी हमें। हमारे चैनल पे ब्लर नहीं चलता है, लेकिन शायद बीप लगानी पड़े। ओके जी, एंड यू हैव टू साइन एज वेल। अरे कितने अच्छा ही है, वैसे मुझे बड़ा अच्छा लगा ये आइडिया। लाइक आप किसी को बर्थडे पे विश भी कर सकते हो इस तरह से, बहुत अच्छा है ये, यूनिक सा। जी, ये बॉटल हम रखेंगे अपने प्रोग्राम में, इसी बोर्ड पर होगी, और उस्मान will come and he will open this bottle. Message in a bottle. Thank you so much. Thank you, Maria. All right. Okay, great. चलें जी। अच्छा, ये तो हो गया मैसेज इन अ बॉटल। माया, अब मेरे पास ना, मैंने तुम्हारे रिफ्लेक्स एक्शन चेक करना है। ये बड़ा मुश्किल काम होता है। I know. अब मैं चाहती हूँ कि तुम इसमें ना जीतो। इसके अंदर सिंपल क्वेश्चंस हैं। इसमें तुमने हाँ, ना, जी, नहीं, नो, यस, इनका इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है? और ये भी नहीं करना मैं ये कह रही थी, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, पता चल गया ना? यस, नो, हाँ, ना, या ये इस्तेमाल नहीं करने, ठीक है? और पॉज नहीं लेना। ओके, हाँ, ऐसा ना हो कि हमें तलत हुसैन साहब याद आ जाए। वो नहीं होना चाहिए ना, उनके लंबे लंबे पॉजेस, बिल्कुल नहीं। मैं वेयर्स द पेन, तो मैं वो क्वेश्चन कैंसिल कर दूंगी, ठीक है? ठीक है, जल्दी जल्दी। ओके ओके। क्या आपने टर्की में शॉपिंग की? अभी तक हाँ। अभी तक हाँ, ग्रेट। अच्छा, क्या आपने अपनी फैमिली को मिस कर रही हैं? बहुत ज़्यादा। क्या आप रैश ड्राइविंग करती हैं? नहीं। ओके। क्या आप बहुत मूडी हैं? जी।
जी नहीं कहना। ओके, जज्बाती फिल्म देख के रोना आता है? बहुत ज्यादा। हाँ, क्या आपके पास अपना मोबाइल है? जी। ओके। क्या आपने टर्की में नई सिम खरीदी है? हाँ। क्या आप जल्दबाज हैं? बहुत ज्यादा। क्या आप इस सफर को एंजॉय कर रही हैं? बहुत ज्यादा। रात को कितने बजे सोई थी? 2 बजे। ओके, वेरी गुड। सो आप तो फेल हो गई हैं। अच्छा जी। बड़े अच्छे नंबरों से फेल हुई हैं जी। मैंने सिर्फ चेक करना था। देखा तो इतना कि मैं भी कंफ्यूज हो गई कि क्या सही बोला है क्या नहीं। एनीवे, दिस वाज जस्ट अ गेम, जस्ट फन। जी माया, मैं बड़ी इम्प्रेस हुई हूँ आपसे। आप तो बड़े अच्छे नंबरों से फेल हुई हैं। कोई होता है, मैं इनमें और इतनी कॉन्फिडेंस के साथ। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। क्या बात है आपकी। ठीक है, लेकिन फिर भी हम आपको खाली हाथ नहीं जाने देंगे। हमारा यहाँ की रिवायत नहीं है, रिवाज नहीं है। वी हैव अ स्मॉल गिफ्ट हैम्पर फॉर यू। थैंक यू मारिया। और हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आपने टाइम निकाला, आप हमारे पास आई, एंड आई होप कि ये दोबारा भी, आई एम श्योर हमारी ऑडियंस चाहेगी और वो जरूर फरमाइश करेगी कि भाई माया को दोबारा बुला। मुझे लगता है कि उस्मान के आने के बाद बुलाना पड़ेगा। दिस इज व्हाट आई थिंक, कि जब वो मैसेज इन बॉटल खोलेगा तो फिर वो कहेगा कि मैं लिख रहा हूँ मैसेज माया के लिए, अब उसको बुलाओ। तो आई थिंक तब आना पड़ेगा। नहीं, फिर डेफिनेटली मैं आऊंगी उसका जवाब देने के लिए। तो देखो ना, ये देखो, हमने तुम लोगों को फोन और ईमेल से निकाल दिया। बड़ी बात नहीं मारिया के लिए, पाकिस्तान से बुलाती है। ये भी हो सकता है कि वो सर पे भी पड़ सकती है, वेपन के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकती है। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। वी हैड अ लवली टाइम। थैंक यू मारिया, मुझे भी बहुत मज़ा आया। एटलीस्ट वही बात के बैंड बाजा बारात जैसा आपका शो नहीं है। आप मॉर्निंग शो की एंकर लग रही हैं, बैठी हैं, कैजुअली बात कर रही हैं, कोई मनो मेकअप नहीं लगा हुआ, और बहुत अच्छे व्यूज़ हैं, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा खाना, गाना, ये वो बहुत अच्छा रहा अब तक। आई एम ग्लैड कि आपको मजा आया। आई होप हमारी ऑडियंस को भी अच्छा लगा होगा। आपके मशवरे हमें चाहिए। आप क्या देखना चाहते हैं, कौन कौन से गेस्ट को देखना चाहते हैं, जरैन से क्या म्यूजिक सुनना चाहते हैं, किस ज़बान में सुनना चाहते हैं, मरियम आपको क्या बना के खिलाएं, कोफ्ता बिरयानी बना के खिलाएंगी नए म्यूजिक, नए सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ। टिल देन, खुदा हाफिज।